doing well. So let's begin with chapter number 13 of English, and the name of the chapter is The Day I Rescued Albert Einstein's Compass. Right? So जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बता रहे हैं. Right? So Albert Einstein was truly a fascinating man. The great physicist had come to visit young Theo's father, who introduced Einstein to his son as the most famous man alive. Right? If you are lucky, something special will happen to you in your life that you will never forget. So they are saying कि अगर आप लकी हो तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आप शायद कभी नहीं भूल पाओगे. Right? Something so special, you know, it could have happened only to you. For me, it was the day I rescued Albert Einstein's compass. So कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, तो जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, इट हैपेंड मेरे टू मी, ये मेरे साथ हुआ. राइट? और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे था जब मैंने रेस्क्यू किया एल्बर्ट आइंस्टाइन का कंपास. It was Sunday morning. As I came downstairs, I heard playing the violin. ये संडे मॉर्निंग का टाइम था. मैं नीचे आया और मैंने सुना कि कोई वायलिन को बजा रहा है. राइट? The living room doors were slightly ajar. My mother and my father were waiting for me. कि ड्राइंग रूम के जो रूम्स थे वो थोड़े से खुले हुए थे और मेरे जो मदर और फादर थे वो वहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे. My father said to me, "Do you remember Theo, about 5 years ago when you were 7 years old and you met our dear friend, her Professor Einstein? I told you then that he was the most famous man alive." और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे मदर और मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम्हें याद है थियो, जब तुम 5 साल के थे, when you were 5 साल पहले जब तुम 7 साल के थे, and you met our dear friend, कि तुम हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त से मिले थे. Here is Professor Einstein. ये प्रोफेसर आइंस्टाइन है. I told you that then that he was the most famous man alive. कि मैंने तुम्हें बताया था कि यही सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस पर्सन है यहाँ अभी तक जो कि जिंदा है. Yes, I do, Papa. I said he is here, Papa. अब मैंने बोला कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है. तो क्या वो यहाँ पर आए हुए हैं? राइट? My father nodded. Yes, he is here. He is playing the violin. और मेरे पापा ने सिर हिलाकर कहा कि yes, वो यहीं पर हैं और वो वायलिन को बजा रहे हैं. राइट? Suddenly, the doors of the living room flew open and deep voice said with a chuckle, "The last time I was here, your father assured you that I did not bite. And as your father and I have been close friends for many years, he knows that I still do not bite." He chuckled even louder. और जैसे ही डोर्स जो है लिविंग रूम के वो खुले, वैसे ही मुझे एक आवाज़ आई. I heard a deep voice with a chuckle, जो कि हंसते हंसते बोला कि जब मैं लास्ट टाइम तुमसे मिला था तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया था कि I do not bite, कि मैं बाइट नहीं करता हूँ. और मैं अब भी शायद यही तुम्हें बताना चाहूँगा कि इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि मैं जो है वो बाइट नहीं करता हूँ. और ये बोलकर वो और भी ज़्यादा तेज हंसने लगे. राइट? I looked up. There was a thick black mustache and a large head with grey black hair bushing all around. अब मैंने ऊपर देखा तो there was a thick black mustache. उनकी जो मूछें थी वो बहुत ही ज़्यादा काली और घनी थी. And large head with grey black hair blushing out all around. और बहुत एक बड़ा सा हेड था with grey black hair. उनके जो हेयर थे वो ग्रे और ब्लैक थे, bushing all around. There were the eyes, dark and merry. He hadn't changed, although he seemed much less formidable than he had 5 years ago. अब उसी के बाद उसकी जो आइज थी, there were the eyes dark and merry. उसकी जो आइज थी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और मेरी यानी बहुत ज़्यादा खुश थी. राइट? He hadn't changed, कि उनकी जो लुक थी, उनका जो फेस था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था. And he seemed much less formidable than he had 5 years ago. Right? After that, perhaps because I was older now, Einstein led his violin at the side of the piano.
अब जबकि मैं बड़ा हो चुका था तो आइंस्टाइन ने वायलिन जो है उसको पियानो के बराबर में रख दिया। नाउ यंग मैन, लेट अस गेट इमीडिएटली टू योर बिजनेस। योर पेरेंट्स टेल मी दैट यू हैव अ सेल बोट। अब उसने अपना पियानो जो है अपना जो वायलिन था वो पियानो के साइड में रखा और बोला कि चलो अब जल्दी से काम की बातें करते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक सेल बोट है। आई हैव लव्ड sailing all my life. Will you take me out on your boat? It is a beautiful day. अब उसी के बाद उसने बोला कि मुझे सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी पूरी लाइफ में सेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Will you take me? क्या तुम मुझे अपनी बोट पर सेलिंग के लिए ले चलोगे? और आज दिन भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। I looked at my parents take the most famous man alive sailing in my sailboat. अब मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या मैं मोस्ट फेमस मैन अलाइव को अपने साथ अपनी सेल बोट पर ले जा सकता हूँ। माई नेक एंड चीक्स फेल्ट हॉट, कि उस टाइम मेरा जो गला था और मेरे जो चीक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वार्म फील कर रहे थे। माई मदर लुक्ड वेरी प्लीज्ड, कि मेरी मम्मा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। आवर गेस्ट इज़ एन एक्सपीरियंस टेलर एंड सो आर यू, कि मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही एक अच्छे एक्सपीरियंस टेलर हैं और तुम भी वैसे ही हो, राइट। इट वुड बी लवली फॉर द टू ऑफ यू टू गो आउट ऑफ द लेक। इट विल बी समथिंग यू विल ऑलवेज रिमेंबर, शी सेड, एंड द मोस्ट फेमस मैन अलाइव पुट हिज हैंड ऑन माय शोल्डर। इसी के साथ उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम दोनों ही सेलिंग के लिए बोट पर जाओगे, ये तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम हमेशा याद रखो। और उन्होंने ऐसा कहा कि तुम इस फेमस मैन अलाइव को अपने साथ लेकर जा सकते हो। और इसी के साथ फेमस मैन अलाइव ने मेरे हाथ शोल्डर पर हाथ रखा और हम दोनों चले गए। Then let us be off. We walked down from the hill from the house towards a line giant blue spruces that edged the lake. और इसी के बाद वो अपने घर से निकले और पहाड़ी से नीचे गए ताकि वो नीचे लेक तक जा सके। Is there always so much bird song here, Theo? My new friend asked. अब उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर क्या हमेशा ही बर्ड जैसे गाना गाती रहती है, थियो? It is wonderful to have the air filled with such music. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हवा में ऐसा गाना सुनाई दे रहा होता है। This was another thing we had in common. कि ये दूसरी चीज़ थी जो हम दोनों के बीच में बिल्कुल सेम थी। I was delighted that he was interested in birds. I was a keen bird watcher, and my parents had given me a very fine pair of binoculars for my last birthday. अब उसने बोला, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसने उसे बताया कि he was very much interested in the birds. उसको birds में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बर्ड्स को वॉच करता था, उन्हें ऑब्जर्व करता था। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक फाइन पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स पिछले बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था, राइट। इट्स स्प्रिंग, आई सेड, एंड द बर्ड्स आर लेइंग देयर एग्स इन द नेस्ट दे हैव बिल्ट इन ब्लू स्प्रूसेस, दे आर हैप्पी। डू यू हैव बर्ड्स वेयर यू लिव? अब इट्स स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का टाइम है, मैंने उनसे बोला, और जो बर्ड्स हैं वो एग्स ले कर रही हैं नेस्ट में। दे हैव बिल्ट इन देयर ब्लू स्प्रूसेस, दे आर हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और डू यू हैव बर्ड्स व्हेन यू लिव? कि क्या जब आप वहाँ पर रहते थे तो क्या आपके पास जहाँ पर आप रहते थे क्या आपके पास वहाँ पर बर्ड्स हैं? नो नो नॉट नाउ, ही स्माइल्ड फादर रादर सैडली। अब उसने बोला कि नहीं, अब मेरे पास कोई भी बर्ड नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा दुखी होकर कही, ऐसा मुझे फील हुआ। Not now, I live in the city, but when I was a boy and went sailing on the lake near my home, there were birds everywhere. उन्होंने उसे बताया कि अब तो मैं सिटी में रहता हूँ, पर जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसे ही अपने घर के पास सेलिंग के लिए जाता था लेक पर, और वहाँ पर सारे एरिया में बर्ड्स ही बर्ड्स थी। Just then our friar came into view. We could see my bright green boat with just jaunty green and white striped sail rocking gently on the water. इसी के बाद जैसे ही फायर आया तो उन्होंने व्यू देखा वहाँ का और उन्हें वहाँ अपनी बोट जो है वो दिखाई दी जो कि पानी में रेस्ट कर रही थी। What have you named your boat?
her Einstein asked. अब आइंस्टाइन ने उनसे पूछा कि तुमने अपनी बोट का क्या नाम रखा हुआ है. Fleet Felix, I answered proudly. Her Professor Einstein approved. I like that. अब उसने अपनी बोट का नाम बताया कि मैंने अपनी बोट का नाम फ्लीट फेलिक्स रखा हुआ है. मैंने बहुत प्राउडली बताया अपनी बोट का नाम, और आइंस्टाइन ने बोला कि मुझे ये नाम पसंद आया. Right? We put on the orange life jackets I kept in a giant tin drum by the end of the prayer. कि मैंने प्रायर के एंड पर एक ड्रम में 3 मतलब ऑरेंज लाइफ जैकेट्स रखे हुए थे जो हमने वहां से निकाल कर पहने. Then I stepped into the boat, और उसके बाद मैं बोट में चला गया. Right? My crew of one united the rope, coiled it up and came aboard. उसके बाद मैं उठा. माई क्रू ऑफ वन यूनाइटेड रोप, कि उसने जो रोप थी वो खोली, कॉइल्ड अप की, और हम लोग सेलिंग के लिए चले गए. ही टुक ओवर द सेलर एंड आई हेल्ड द शीट. अब उसी के बाद ही टुक ओवर द टिलर एंड आई हेल्ड द शीट. इसी के बाद उसने टिलर को खोला और हम लोग अपनी शीट लेकर चले गए. We were off. There was an easy breeze. कि हम लोग जब चले तो वहाँ पर एक अच्छी सी हवा चल रही थी. We followed the shoreline, कि हमने shoreline को follow किया. The clouds were pink cotton puffs and the sky was blue as my mother's eyes. कि जो clouds हैं वो बिल्कुल pink थे cotton puffs की तरह, और जो sky है वो blue था बिल्कुल मेरी मम्मा की eyes की तरह. I decided that this was a perfect time to ask my question. ये इसी के बाद मैंने पूछा, डिसाइड किया कि दिस वॉज द परफेक्ट टाइम, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम था मेरे क्वेश्चन पूछने के लिए, और मैंने उसी टाइम पूछा. आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट इट एवर सिंस आई हैड वॉक्ड इनटू द लिविंग रूम. आई टुक अ डीप ब्रेथ. उसी के बाद उसने बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये तब से सोच रहा हूँ आपसे कुछ पूछने का, पर मुझे बिल्कुल नहीं हिम्मत हो रही है, और मैं तभी से पूछना चाहता हूँ जब से कि मैं लिविंग रूम में एंटर हुआ था. I took a deep breath. उसके बाद मैंने एक लंबी सांस ली, और I asked my question slowly. Why did you want to be a physicist? अब मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो धीरे से पूछा कि Why did you want to be a physicist? आप फिजिकिस्ट क्यों बनना चाहते थे? Right? He didn't answer my question. Instead, he put his hand into his pocket. कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दिया, उसकी बजाय उन्होंने अपना हाथ जो है वो अपनी पॉकेट में डाल दिया. Right? It has fallen through a hole in the lining. अब उन्होंने बोला कि कुछ चीज थी जो कि गिर चुकी है लाइनिंग में से. And he threw back his great head and laughed and laughed. अब उन्होंने अपना जो हेड था वो पीछे की तरफ किया, और वो पीछे बैठकर जोर जोर से हंसने लगे. What? The greatest man alive had a hole in his pocket. अब ग्रेटेस्ट मैन जो उसने रियलाइज किया कि इतना ग्रेटेस्ट मैन जो अलाइव है, क्या उसकी पॉकेट में एक होल है. आई वॉज ग्लैड इट मेड हिम लाफ, बट आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड. अब मुझे ये तो समझ आया था कि उसने इस बात ने उसे हंसाया, पर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था. एक्सक्यूज मी द प्रोफेसर, बट व्हाट हैज फॉलन थ्रू अ होल इन योर पॉकेट? आई आस्क्ड पोलाइटली. अब मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, कि आप क्या चीज थी जो आपकी पॉकेट में से गिर चुकी. मैंने उनसे बहुत ज्यादा पोलाइटली ये चीज पूछी. द आंसर टू योर क्वेश्चन, दिस इज व्हाट हैज फॉलन थ्रू द होल Hunnel heavens. I think it is somewhere under the pocket now. 1 minute, I must tear the lining a little more. There now, I shall fish it out only, but it won't be a fish. But उसी के बाद उसे अपने उस क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो ये था कि that is what has fallen through whole Hunnel heavens. उसने बोला कि मेरी पॉकेट से एक बहुत अच्छी चीज गिरी है जो कि Hunnel heavens के नाम से है. आई थिंक इट इज समवेयर अंडर माई पॉकेट नाउ. कि मुझे लगता है कि वो मेरी पॉकेट के नीचे ही कहीं पर है. 1 minute, I must tear the lining. जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपनी पॉकेट जो फटी हुई थी उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की. There now I shall fish it out. कि अब मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ, पर वो एक फिश बिल्कुल भी नहीं है. By this time I was also laughing. अब इस टाइम तक उनकी सिचुएशन देखकर मैं भी हंस रहा था. Right?
After that, I looked up at the sky. Two red-tailed hawks were riding the warm air currents, the thermals. अब उसी के बाद जब मैं हंस रहा था तो मैंने स्काई में देखा, वहाँ पर दो रेड टेल्ड हॉक्स थे जो कि हवा में उड़ रहे थे, राइट. फ्लीट फेलिक्स वॉज कैचिंग द ब्रीज परफेक्टली. फ्लीट फेलिक्स जो थी वो हवा की दिशा को अच्छे से पकड़ रही थी. He drew out his hand. When I was 5 years old, I was quite ill. I had to stay in bed for many days. My father gave me this compass. अब उन्होंने अपना हाथ अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और बोला कि जब मैं 5 years का था तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था और तब मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया था और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे ये कॉम्पस जो है वो दिया था. He peered at me. You know what a compass is for? Of course, I nodded. Good, he continued. It was the first compass he had ever seen. There was the needle. अब उसी के बाद उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि कॉम्पस जो है वो किस लिए यूज किया जाता है. And he said, yes, I know. Of course, मुझे पता है कि कॉम्पस क्यों यूज होता है. तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है अगर तुम्हें पता है तो. और ये बोलकर उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करी कि ये पहला कंपास था जो मैंने देखा था. There was the needle, कि उसमें एक नीडल थी. Under the glass, all alone, no matter which way I turned the compass to a 5-year-old boy, it seemed like magic. Only it wasn't magic at all. Of course, you know why. अब उन्होंने बोला कि चाहे किसी भी दिशा में इस कंपास को घुमा लो, इसकी जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ साइड की ओर ही पॉइंट आउट करेगी, राइट. और ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह था. बट इट वॉजंट अ मैजिक. आई होप यू नो दैट. उन्होंने पूछा कि ये मैजिक नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा पता होगा कि ये क्यों हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है. I took a deep breath and said, because the needle is magnetic and there is magnet at the north pole that attracts the needle. अब मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें आंसर दिया कि ये नीडल मैग्नेटिक है, राइट. और जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल पर है, इसीलिए जो नीडल है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाती है. My sailing partner raised his bushy eyes. Nearly correct. अब मेरा जो पार्टनर था उन्होंने अपनी बुशी आईब्रोज को हिलाया और बोला कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. There are two magnetic poles, north and south, so far away, and there on the palm of my hand was my compass, always pointing north. For me, it was the greatest mystery I could imagine. अब इसी के बाद उसने बोला कि so far away and there on the palm of my hand. उन्होंने अपना जो कॉम्पस था वो हाथ पर निकाल कर रखा और बोला कि हाँ वहाँ देयर आर टू मैग्नेटिक पोल्स, साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल. अब थोड़ी सो फार अवे एंड देयर ऑन द पाम ऑफ माय हैंड वाज माय कंपास, ऑलवेज पॉइंटिंग नॉर्थ. फॉर मी इट वाज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री आई कुड इमेजिन. सो आई डिसाइडेड देन and there that I would learn all about the forces in the universe that we cannot see, for I certainly could not. अब उसने बोला कि बहुत से ऐसे फोर्सेस हैं यूनिवर्स में जो कि हम देख नहीं सकते हैं, बट हम लोग शायद उन्हें फील कर सकते हैं. At moment, two motorboats zoomed past us, stirring up the water into high waves. अब उसी मोमेंट पर दो मोटर बोट जो थी वो हमारी बोट के पास से गई, फ्लीट फेलिक्स के पास से गई और पानी में तेज तेज लहरें जो थी वो उठने लगी. One of them hit Fleet Felix against the side, knocking the compass from the professor's hand right into the water. इसी के बाद उन्होंने हमें पता चला कि उनमें से एक जो मोटर बोट थी उसने फ्लीट फेलिक्स को हिट किया है साइड से, और इसी दौरान जो बोट थी उसका बैलेंस बिगड़ गया और प्रोफेसर के हाथ से कंपास जो था वो सीधा नीचे पानी में जाकर गिर गया. He stared at his empty palm. The compass flew. अब उन्होंने अपनी खाली हथेली की तरफ देखा और उन्होंने थियो को बोला कि कंपास कहाँ गया, राइट. It's gone overboard. Suddenly there was so much sadness in his eyes. अब उसी दौरान कि वो जो कंपास था वो बोट से नीचे गिर चुका था और सडनली उनकी आंखों में बहुत ज्यादा उदासी छा गई कि उनका कंपास जो है वो गिर चुका है. I should hate to lose it and I cannot swim very well.
and my eyesight is not good. His voice trailed off and he was looking far into space. अब I should hate the lose it, hate to lose it, कि मुझे बहुत बुरा लगेगा मैंने उसे खो दिया, पर मुझे इतने अच्छे से तैरना नहीं आता है, मेरी जो आईसाइट है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है. His voice trailed off and he was looking far into space. अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे, उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो गई थी. And he was continuously looking into the sky. But I could swim. I dropped anchor into the water to keep the boat in place. I pulled off my life jacket. The waves had quieted down now. I jumped into the water. उसी के बाद मैंने एंकर जो है वो पानी में डाला ताकि बोट जो है वो एक ही जगह पर स्थित रहे. एंड आई पुल्ड ऑफ माई लाइफ जैकेट, और उसी के बाद मैंने अपनी लाइफ जैकेट जो थी वो उतार दी. The waves have quieted down now. I jumped into water. अब waves जो है वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी और मैं पानी में कूद चुका था. My parents were sure I had been a fish before I was a boy. कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं और वो बिल्कुल श्योर है इस चीज़ को लेके कि शायद मैं पहले एक मछली ही हुआ करता था. Now was my chance to prove it. First I swam round and round the boat. अब मेरा चांस था कि मैं उन्हें ये प्रूव करके दिखाऊं कि मैं पहले बोट के इधर उधर राउंड एंड राउंड घूमा. Then I dived under, searching beneath the hull once, twice, thrice, three times, staying under as long as my breath held. उसी के बाद मैं पानी के अंदर गया और पानी के नीचे इतनी देर तक रहा जितनी देर तक मैं रह सकता था. एक बार, दो बार या फिर 3 बार. Then I started swimming further away from the boat. उसी के बाद मैंने बोट से दूर जाना जो है वो बंद कर दिया. Under and under had to find it. Her Professor Einstein might be the most famous man alive right now. अब under and under had to find it कि मुझे और नीचे जाना पड़ता और मुझे उसे ढूंढना ही था. Her Professor Einstein might be the most famous man alive right now, but he was once 5 years old and his father had given him a compass that he had treasured all these years. कि आज शायद वो एक बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है जो कि जिंदा है, बट कभी वो भी बच्चे होते थे और वो भी 5 साल के थे और तब उनके फादर ने उन्हें वो कंपास जो है वो गिफ्ट किया था और जिसे उन्होंने इतने सालों तक संभाल कर रखा. I thought about the binoculars my parents had given me and how could I feel if I lost them. अब उसी को मैंने अपने ऊपर लेकर देख लिया उसी सिचुएशन को कि अगर मेरे जो बाइनोकुलर्स हैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किए हैं अगर वो खो जाएंगे तो मुझे कैसा फील होगा, राइट? उसी के बाद I made another dive under the boat. As I came up for air, I felt something so very gently hit my cheek. उसी के बाद जैसे ही मैं ऊपर आया बोट के पास तो मैंने देखा कि कुछ चीज ऐसी गई हवा में जिसने मेरे चीक्स को टच किया. It was the compass bobbing alongside Fleet Felix just waiting to be rescued. अब वो कॉम्पस ही था जो कि फ्लीट फेलिक्स के एक साइड में लटका हुआ था और वो वेट कर रहा था कि कब कोई उस कॉम्पस को बचाएगा. Clutching it in my hand, my left hand, I grabbed hold of the boat with my right. Professor Einstein's eyes were closed. उसी के बाद मैंने उसे पकड़ा लेफ्ट हैंड से और फिर मैंने फ्लीट फेलिक्स को पकड़ा अपने राइट हैंड से और प्रोफेसर आइंस्टाइन की जो आंखें थी वो क्लोज हो चुकी थी. Pardon me, I called to him. Pardon me, here is your compass, and I clambered aboard. अब उसी के बाद उसने उन्हें बताया कि आपका कंपास जो है वो मुझे मिल चुका है और वो बोर्ड पर आ चुका था. He opened his eyes, so he said with a smile, "This is why I became a physicist," continuing just as if nothing had happened. उसी के बाद उसने अपनी आईज को खोला और उसको एक स्माइल के साथ आंसर किया कि इसीलिए मैं एक फिजिकिस्ट बना और मैं अपनी लाइफ में कंटिन्यू किया ताकि जो भी चीज़ हुई है उनको देखकर ऐसा लगे ही ना कि मेरे साथ कुछ बुरा लाइफ में पहले कभी हुआ है. As you know, a physicist studies the forces in nature that we cannot know directly. Only we know that they are there from what we observe. Like the compass needle, he paused. अब उसी के बाद उसने बोला कि
नेचर में ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम शायद डायरेक्टली नहीं जानते हैं। हम उनके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक द कंपास नीडल। ये पॉज और ग्रेविटी आई ऑफर्ड अ बिट टेंटेटिवली, और उसने जवाब दिया ग्रेविटी भी उन्हीं में से एक है, राइट? ब्रावो यंग मैन और ग्रेविटी, ऑल दीज फोर्सेस कीप आवर प्लैनेट रनिंग क्वाइट स्मूथली most of the time, and thank you dear Theo, for me you are the most famous boy alive. ये सभी फोर्सेस हमारे प्लैनेट को काम करने में हेल्प करते हैं, स्मूथली चलने में हेल्प करते हैं, और थैंक यू थियो कि तुमने मुझे मेरा ये कंपास जो है वो वापस लाकर दिया। His eyes were merry again. I was still trying to catch my breath, but I had to ask another question. Would you say it is because of the compass that you are now the most famous man alive? अब उसकी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उसकी आईज में खुशी जो है वो दिखाई दे रही थी। I was still trying to catch my breath, कि मैं अब भी अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे एक दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछना था। Would you say it is because of the compass that you are now the most famous man alive? कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कंपास की वजह से ही ऐसा है कि आप मोस्ट फेमस मैन अलाइव के नाम से जाने जाते हैं? He sat very still. The compass was my first mystery and all my life had worked to solve mysteries. अब उसने बोला, वो वहां पर बिल्कुल शांति से बैठ गया और बोला कि कंपास जो है वो मेरी पहली मिस्ट्री था और मेरी पूरी ही लाइफ ऐसी ही बीती है कि मैं मिस्ट्रीज को सॉल्व करूं। He put the compass in his pocket, the one with the hole in it, and I am not the most famous man alive, no matter what your dear father says, but you are surely the bravest and kindest boy I know. अब उसी के बाद उसने बोला, he put the compass in his pocket, उसने अपना कंपास जो है वो पॉकेट में रखा, the one with the hole in it, जिसमें छेद था उसी में रखा, and I am not most famous man alive, कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो मोस्ट फेमस मैन है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फादर क्या कहते हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट और काइंडेस्ट बॉय हो जिसे मैं अभी तक जानता हूँ। After that, when we reached home, my parents asked me why were both wet and why I was soaking. We had an adventure, answered my friend. अब जैसे ही हम घर गए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि हम दोनों इतने भीगे हुए क्यों हैं और हम why we are like this. So मेरे फ्रेंड ने आंसर दिया कि हमने एक एडवेंचर किया, one I don't think either of us will ever forget, और वो एक ऐसा एडवेंचर था जिसे हमें नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी कभी भूल पाएगा, right? That night I wondered what my father and mother would say if they knew that the most famous man alive had a hole in his pocket and couldn't swim very well. अब उसी रात मैं सोच रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा कि अगर जिस मैन को वो फेमस मैन अलाइव का नाम से जानते हैं उसकी पॉकेट में एक होल था तो वो लोग उसे कैसे जज करेंगे, और उसे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती, ये भी बताऊंगा। आई डोंट थिंक आई शैल एवर टेल देम, तो उसने ये डिसाइड किया कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये चीज अपने मम्मा पापा को बता पाऊंगा। सो दिस वाज द स्टोरी व्हिच वाज रिटन बाय Shulamith Levi-Opening, right? So I hope you learned something from this. So thank you so much and have a great day.